बहुत अच्छी बात है. कांग्रेस पार्टी इज नॉट गोइंग टू द प्राण प्रतिष्ठा because religion is a personal matter. But there are enough visuals of iftar parties attended by various leaders of the Congress party, including Rahul Gandhi. There are pictures of Rahul Gandhi going into masjids offering namaz. But Ram Mandir जाने में personal becomes public, and that is something that has been quoted as the reason. And why? What started with a man called Sita Ram Yechuri, who said that this invite and this function is against the constitution, ends today with a statement from, quote unquote, Jai Ram Ramesh. Coincidence? Hypocrisy? What would you call this? Good evening, Navika. The four Shankaracharyas, they have refused to go to the Pran Pratishtha ceremony. And they have cited that the temple is incomplete and the entire ceremony is not being conducted as per the Vidhi Vidhan of the Shastras. It is important to understand that the Hindu religion that an ordinary Indian follows, it is as per the Vidhi Vidhan and Shastras, not as per the dictates of the political party like BJP. What BJP is doing, it is not allowing the priests, the saints who have lived the life of preaching, practicing Hinduism to carry out the Pran Pratishtha. But it is Prime Minister Narendra Modi, I don't know in what capacity, where is it written in the Shastras that a political person who has no religious, I would say, affiliation or training or has never been into priesthood is going to provide the Pran Pratishtha. So what I am saying here is, such an important event, such an important ceremony is being politicized. And it is unfortunate that the religion is being manipulated. The religion is being used as a means to gain political end. This is unfortunate, and the Congress party knows very well that it, rather than reaching out to the Hindus, it is hurting the sentiments of Hindus because their religion is being manipulated. That is why they are not going to the event, and I welcome it. Okay. Fantastic, great, lofty ideals, very well. लेकिन तब क्या हुआ था जब शिव भक्त बन गए थे राहुल गांधी? तब क्या हुआ था जब जनेऊधारी बन गए थे राहुल गांधी, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल लिया था? तब क्या हुआ था जब मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले महाकाल चले गए थे? शलमणि त्रिपाठी जी, तब रिलीजन प्राइवेट नहीं था, तब पब्लिक हो गया था. तब कांग्रेस पार्टी ने रिलीजन को पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट नहीं किया था, वो तो सिर्फ बीजेपी करती है. जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी को. नविका जी, हम सब तो बहुत हैरान हैं कि जिस भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को लेकर छूने के मात्र से, स्पर्श मात्र से लोगों की आंखें नम हो जा रही है, लोग भावुक हो रहे हैं. इस देश के लोग, इस दुनिया के लोग, उसका कितने अपमानजनक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ठुकराया है वो आप सबके सामने है. और ये साबित करता है कि भगवान राम के नाम से कितनी नफरत कांग्रेस के मन में है, कितना हृदय में उनकी नफरत. और ये पहली बार नहीं है, ये तो लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि बुद्धि खुल गई हो, शायद कुछ समझ में आ जाए, लेकिन किसको याद नहीं है. इस देश के राम भक्तों ने तो वह भी बर्दाश्त किया है जब भगवान राम को फटे हुए टेंट के भीतर इन लोगों ने रखा. और जब राम भक्त जाते थे कि भाई ओला गिरता है, बारिश होती है, तूफान गिरता है, केवल टेंट को सिल लेने दीजिए, तब ये कहते थे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सिलने देंगे, जैसे चल रहा है वैसे रहने दो. इन्होंने कहा कि भगवान राम काल्पनिक हैं. इन्होंने भगवान राम के खिलाफ मुकदमा लड़ा. एक तरफ भगवान राम लला विराजमान स्वयं अदालत में होते थे और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल उनके खिलाफ मुकदमा लड़ते थे. इसको भी बर्दाश्त किया लोगों ने. इन्होंने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है. इन्होंने कहा कि वहां शौचालय बनवा दो, मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है. पहले तो हमें लगता था नाविका जी कि शायद हो सकता है कि गठबंधन, जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल है, वो शायद ऐसे ही बोलते हैं. लेकिन आज ये साबित हो गया कि रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की, ये पूरी सोची समझी रणनीति थी कि इंडी गठबंधन के लोगों के मुंह से, उनकी जुबान से भगवान राम के बारे में आप शब्द कहलवाओ, रामचरितमानस के बारे में आप शब्द कहलवाओ, सनातन को डेंगू कहलाओ, मलेरिया कहलाओ, एड्स कहलाओ. ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने किया था और आज उनका चेहरा बेनकाब हो गया. जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम के मंदिर का हमेशा विरोध किया, भगवान राम का विरोध किया, आज मुझे लगता है उनका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है. लेकिन हमको विश्वास है
इस देश के राम भक्त बहुत धैर्यवान हैं, बहुत धैर्य रखने वाले हैं। भगवान राम सबका कल्याण करेंगे। इन्होंने भगवान राम के सामने देखा है क्या किया इन्होंने, आगे चल के कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपमानजनक तरीके से आमंत्रण ठुकराया है, भगवान राम तय करेंगे कि उनके साथ क्या होना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर प्रियंका गांधी वाड्रा जी के हैं। और आचार्य जी, प्रणाम भी करती हूं आपको और आज आपसे पूछती हूं, इस देश में तेरे राम मेरे राम कब से हो गए? मुझे लगा था कि राम सबके हैं। ये बीजेपी आरएसएस के राम कौन से हैं, आपके राम कौन से हैं, और सोनिया गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के राम कौन से हैं, और जय राम के नाम में जो राम है ये कहां से आते हैं? क्या ये अलग अलग राम हैं या राम को ही चीर फाड़ कर अलग अलग कर दिया है? नाविका जी, पहली बात तो ये है कि राम सबके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पे कोई बहस का विषय भी नहीं है। और सब राम के हैं। राम के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, ना राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण पत्र मिला और उन्होंने उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत ही ज्यादा वेदना दे रहा है। ये बहुत ही दिल दुखाने वाला ये फैसला है। और इससे सिर्फ मेरा नहीं है, करोड़ों ऐसे हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो भगवान राम में जिनकी आस्था है और वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। उनको सबको ये फैसला जो उनके दिल को दुखा रहा है। तो ये फैसला क्यों किया गया, कैसे किया गया, इतने विलंब से किया गया, और इसमें बड़ा मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि ये फैसला उस कांग्रेस ने किया है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। महात्मा गांधी हर सभा में शुरुआत में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम इसकी धुन गाते थे। और ये फैसला जो हुआ है इससे बहुत ज़्यादा आघात लगा है हम लोगों को। जहाँ तक सवाल है कि अयोध्या ना तो सिर्फ भाजपा की है, ना सिर्फ कांग्रेस की है, ना सिर्फ किसी और पार्टी की है, और ना राम किसी पार्टी के हो सकते हैं। नाविका जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली ये फैसला उस पार्टी ने किया है जिस पार्टी में मैं हूँ और जिस पार्टी के साथ मैं हूँ, और मैं इसलिए ज़्यादा दुखी हूँ आज कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा था, और मैं नहीं, करोड़ों हमारे हिंदू भाई बहन ये सोच रहे थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मेरी बहुत लोगों से बात हुई, आज वो बहुत दुखी हैं। वो सब ये सोच रहे थे कि कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फैसला कराया है और ये फैसला अब हो चुका है। मैं कांग्रेस नेतृत्व से आज पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें।